दोस्तों, अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश लगभग सभी करते हैं, लेकिन जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कार्य करते हैं, वो शख्सियत अपने आप में बेहद खास होते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह राठौर, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित यूनाइटेड नेशंस मुख्यालय में बोलने वाले पहले भारतीय मोटिवेशनल स्पीकर बने, जिन्हें बेहतरीन कार्यों के लिए कई अवार्ड्स और सम्मान मिले हैं। ये सीईओ इंडिया मैगजीन के द्वारा इंडिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर के अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, इन्हें पैशन विस्टा द्वारा ग्लोबल आइकन अवार्ड 2019 में मोस्ट एडमिरेबल ग्लोबल इंडियन का खिताब भी मिल चुका है। 18 के लिए इन्हें बिजनेस मेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। इन्हें मिले सम्मान और अवार्ड्स की सूची काफी लंबी है। एशिया वन मैगजीन ने 2017 में इन्हें एशिया के ग्रेटेस्ट इमर्जिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया और साथ ही इन्हें इनकी डायनेमिक जर्नी और ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स को फोर्ब्स इंडिया, एंटरप्रेन्योर इंडिया, पैशन विस्टा, याहू न्यूज, फाउंडर इंडिया आदि द्वारा कवर किया गया है। श्री भूपेंद्र सिंह राठौर जोश टॉक स्पीकर और टेडेक्स स्पीकर भी हैं। इनके YouTube चैनल कोच बीएसआर पर 11 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी केवल एक ही फिलॉसफी है कि यदि आप निस्वार्थ भाव से दुनिया को सहयोग करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड अंतर रूप से आपका सहयोग करता है। इसी फिलॉसफी पर चलते हुए बीएसआर दुनिया में बदलाव लाने के लिए लोगों को स्वस्थ, संपन्न और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा और मार्गदर्शन देते रहे हैं। बीएसआर थिंक रिच इंडिया मूवमेंट के फाउंडर हैं। इनका मिशन 2030 तक 10 करोड़ लोगों को प्रेरित करना और उनकी जिंदगी में बदलाव लाना है। आइए बीएसआर की इस शानदार जर्नी को ज्वाइन करें, कि सपने को साकार करें। Namaste, Adab, and Sat Sri Akal. Very warm welcome to my guests on 10 News Network to the Shruti Dutt Show. This show is dedicated to inspiring all of you by helping you to meet off the stage, at home, the great successful people we have in our country so that we can learn something from them and take back something that we can adapt in our lives. So that is the intention of this show. And you've just heard what a wonderful, wonderful guest we have today. What does one call a young man who has become a global icon, who can bring the world together, who thinks about the homeless people, and who works to motivate the youth, who works to motivate business people, inspire them, and who is an all-round leader? What do you call him? For me, I call him Vivekanand. And not surprisingly, he shares his birthday with Vivekanand. 12th of January 1863, we had Vivekanand come into India. And almost a century later, 12th January 1982, we had Bhupender Singh Rathore come and look after our motherland after that. So, Vivekanand ji of today's century, very warm welcome to you. And I Thank you would like you, so much. yeah, I love the first I sentence which would, you said has made my day, but it puts a lot of responsibility on my shoulder. I must say. I want to do that because I know you're capable of, doing that for us. So that's the Thank you. whole idea. Thank you. So so what I wanted to basically ask you, because I know Vivekanand went for the world parliament and he was a great speaker and you are a great speaker, and you have made us so proud because you're the first trainer who has ever been invited to the United Nations to speak. And वहाँ पे जाके आपने बहुत ही अच्छी sharing करी on how we all as human beings need to provide home for the homeless people. Why is it that people are still homeless? So, can you share with my viewers a little bit about your, this whole experience of going to United Nations, addressing the international forum, and bringing this point, and how much does this point matter to you personally?
आई Thank you. थिंक Over to you. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैम है कि हम सब इंसान बने, और अगर सब इंसान हैं तो इंसानों के होते हुए कोई जमीन पे रहे, कोई सर्दी में बाहर ठिठुरे, कोई जानवर ऐसे ही मर जाए, आई थिंक दैट्स वेरी बैड, क्योंकि हर कोई क्लेम करता है कि वी आर सक्सेसफुल। अगर हम लोग सब सक्सेसफुल हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आई थिंक वी कैन अपलिफ्ट एटलीस्ट couple of people. So जब मुझे ये टॉपिक मिला तो पहले तो it was very surprising for me, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। मेरा दायरा हमेशा रहा बिजनेस कोचिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग, लाइफ कोचिंग, लेकिन अचानक से जब यूएन का इनविटेशन आया तो ऑब्वियसली वहाँ पे इन चीज़ों की बात से ज़्यादा बात होगी, होमलेसनेस की, या फिर मेडिकल असिस्टेंस की, या फिर हेल्थ की, या फिर कई सारे ऐसे चीज़ें जो कि बेसिक नेसेसिटी है ह्यूमैनिटी के लिए। And I got this topic. I had to study, I had to read, I had to understand, and I realized that so many people in this today's world are living on the streets. और हम देखते हैं भारत देश में, हमारे देखते हैं कि कई लोग गरीब हैं और सड़क पे रह रहे हैं, बारिश में, पुल के नीचे, सर्दी के अंदर। सो it's a very very important matter and it's very emotional to me now. Okay, in fact यूनाइटेड नेशंस में ये टॉक देने के बाद ज़्यादा इमोशनल बन गया। उसके बाद हम लोगों ने एक छोटी सी मुहिम भी चालू की, 365 दिन सेवा। डेफिनेटली हर कोई बिजी है तो उसमें से हर रोज हर आदमी के लिए सेवा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हमने हमारे कमांडो ट्रेनिंग के ग्रुप में ये शेयर किया तो कोई ना कोई आदमी किसी न किसी रूप में, छोटा बड़ा, कोई ना कोई सहयोग किसी न किसी को दे रहा है। एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू ब्रिंग this movement as a very very big movement, 365 दिन सेवा। every single day we should be able to support the people and the world. So United Nations में बोलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी कह सकते हैं। I was very happy जब मैं वहाँ गया, क्योंकि घूमने तो सभी लोग जाते हैं और मैं जब घूमने गया तो it was a very special moment for me, and definitely it made a very special appearance on that global platform, जहाँ मुझे 193 कंट्रीज से एक साथ वहाँ के प्लेटफॉर्म से बात करने को मिला। So it was a dream come true, I must say. It was not even a dream. I never dreamt of it also. You did just the universe. आप कहते हो ना, when you work for everyone selflessly, अभी हमने सुना वीडियो में, the world Right. helps you endlessly. So see, Correct. that is why the world wants you to be on the global stage and change this world and help us all change also, which you are doing so beautifully. Because मैंने आपकी UN speech सुन के थोड़ी research करी, and I realized कि Delhi itself has almost 46,000 people who are homeless, and different थोड़ा सा मिला है, कहीं stats कुछ हैं कहीं कुछ हैं, but 10,000 women who are homeless in Delhi, which is our national capital. And I don't understand this, why. मेरे को भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों है, होना नहीं चाहिए, these stats should not be there at all. So And especially it is definitely concern. Correct, ma'am. Yeah, a lot of NGOs are doing a lot of work. Government is also doing a lot of work, but still there is some gap somewhere, which I think we all need to. आपने एक जगह वहाँ कहा था कि अगर 300 लोग इकट्ठे हो जाएं और सीरियसली इस चीज को देखें तो पूरे दुनिया में कोई होमलेस नहीं रहेगा। तो सिर्फ इंडिया के लिए कितने चाहिए? इंडिया को ठीक करने के लिए तो 100 तो बहुत होने चाहिए। फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि विजनरीज होते हैं ना मैम, जैसे आपने शुरुआत की स्वामी विवेकानंद के नाम से, तो 300 विजनरीज उतने पावरफुल हो गए जैसे स्वयं स्वामी विवेकानंद रहे। तो आई थिंक 300 विजनरीज पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, और इंडिया को चेंज करने के लिए आई थिंक 20, 25, 30 और मे बी 50 आर मोर देन इनफ। रियली यस, बिग विजनरीज आर नीडेड। इतने सारे करोड़ हम लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन आज की डेट में कितनी है? आई थिंक इट्स 1412 million people, हाँ? यस, एंड उसमें से हम 20-25 लोग विजनरीज, अब आपको ही बनाना पड़ेगा हमें। You will have to train the visionaries, which I know you are. Yeah, sorry to interrupt. Go ahead. You are doing a workshop called Discover Your Vision, right? Discover Your Vision is my favorite program, क्योंकि एक्चुअली कई बार ये होता है कि हम लोग जी रहे हैं, बस पड़ोसी को देख के जी रहे हैं। पड़ोसी ने कहा मेरे को 10 करोड़ रुपए मिल गए तो मुझे 25 करोड़ मिलना चाहिए, किसी और ने 100 करोड़ कमा लिए तो मुझे 200 करोड़ मिलना चाहिए।
99% people have a very meaningless goal, which is just to earn money. Money is important, money can give freedom, but money without purpose is very bad. If we have a very strong sense of purpose and sense of understanding कि हमें करना क्या है, वो 500 करोड़ 1500 करोड़ 1000 करोड़ कमा के हमें करना क्या है, अगर हमें सिर्फ अपने लिए लग्जरी चाहिए तो I think 100 crore is more than enough, or maybe 500 crore is more than enough. People are dreaming about big money, but they are not realizing that they need to work for it. They need to have a grand purpose. In fact, जिनके पास बड़ा purpose होता है उन्हीं के पास ज़्यादा पैसा आता है. So I always believe that अगर सभी के पास इतना strong purpose हो, और जब मैं कहता हूँ 300 विजनरीज इनफ है, तो आप देखिए अगर हमने इतने सालों के हमारे इतिहास को भी उठा के देखे तो हैंडफुल पीपल, 300-400 पीपल हैव रियली ब्रॉट रेवोल्यूशन. चाहे अगर हम फ्रीडम फाइटिंग की बोले तो गांधी, भगत सिंह, टैगोर एंड ऑल दोस पीपल, सुभाष चंद्र बोस. अगर हम देखें तो हैंडफुल पीपल, दो दे माइट हैव बीन सपोर्टेड बाय मेनी पीपल, बट दीज आर द पीपल हु वर द लीडर्स, एंड दोस फ्यू हैंडफुल लीडर्स ब्रॉट अस द फ्रीडम. Okay, they ignited the spark. So ऐसे ही 300 अगर विजनरी हो गए तो पूरा देश क्या पूरी दुनिया बदल जाएगी मैम. पूरी दुनिया बदल जाएगी. And you know, we all live with the spirit of the world is a family. You know, our Vedas, Upanishads have talked about it. So we definitely want the world to become very peaceful. You know, India की तो vision हमेशा यही रही है. We don't want war on this planet ever. Which is unfortunate कि अभी भी हो रही है, टेररिज्म हो रहा है, वॉर हो रही है. तो अगर हर इंसान का, हर यूथ का एक पर्पस बन जाए लाइफ में और एक विजन बन जाए अच्छी, that I think is really the right way to change this world, you know. And of course it begins with yourself. So you have a great vision, I know that. So I would like you to share your vision as a trainer कि आप करना क्या चाहते हैं. What is your vision, personal vision? So my personal vision is I want to really bring 300 visionaries in this planet. All right. वैसे मैं बात करता हूँ 50 करोड़ लोगों को मुझे इंस्पायर करना है 12 जनवरी 2030 के पहले. That is my massive goal. And to create a meaningful transformation, हर एक इंसान जो मेरे टच में आए उसके अंदर एक significant transformation वो फील करे, जहाँ पे कि वो अपने आप से ऊपर उठ के इंसान बन सके. मुझे किसी धर्म से नफरत नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ से अच्छा नहीं लगता कि लोग धर्म के नाम पे काफ़ी सारा बंटवारे की बात कर रहे हैं कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, सिख अलग है, ईसाई अलग है, बुद्ध अलग है, जैन अलग है. आई थिंक वी ऑल आर ह्यूमंस, एंड अगर हम लोग सब ह्यूमैनिटी को सीख जाएं तो आई थिंक वी विल बी मच 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 बिगर. और यही मेरा सबसे बड़ा पर्पस है इस दुनिया में कि मैं जब तक हूँ तब तक मिनिमम इफ नॉट मच 50 करोड़ लोगों को तो ये संदेश दे सकूं और बहुत स्ट्रांगली दे सकूं. आई डोंट मीन जस्ट दैट. इसीलिए तो मैं आपको विवेकानंद कहती हूँ. थैंक यू मैम, थैंक यू. ये तो बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है. इसलिए कहती हूँ क्योंकि उन्होंने भी ईस्ट और वेस्ट को जोड़ा. उन्होंने भी बोला कि रिलीजन और साइंस को, यू नो, रिड्यूस द गैप बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, रिलीजन एंड साइंस, पास्ट एंड प्रेजेंट, bring the world together. Don't focus only on, you know, religions. And he called everybody brothers and sisters, right? That is his famous speech we all know. So, and you have the same emotions, the same thought process, which is so awesome, you know. And I have not witnessed Vivekanand ji, but your energies I have witnessed. I have been to one of your workshops. He was very spiritual. I'm sure he was very, very learned and enlightened. No, you are also on the path of spirituality, I know, because I also follow you in your commando training, जो आप सुबह सुबह करते हैं और हम सबको 4:30 बजे उठा देते हैं. And you know, do meditations and you read from the Vedas, and I think it is so awesome. So let's talk about this getting up in the morning. रॉबिन शर्मा जी भी इंडिया से गए थे, उन्होंने अमेरिका में धूम मचा दी 5 AM क्लब के बारे में बता के. So, of course, lots of trainers are promoting this. And at the same time, there is a whole, you know, group of youth जो उठते ही 12 बजे, 11 बजे, you know, and whole lot of business people also, they start late and they work late. They start their work at 12. And they say, we are doing fine. कोई ज़रूरत नहीं होती 4:30 उठने की, you know, because they're making good money. So for them, doing fine is making enough money. So, tell us, why do you feel it is so important to train ourselves to get up early and to have that thinking process? How does that make a difference in our lives?
lot of people are waking up late क्योंकि कई बार आजकल ग्लोब बहुत छोटा सा हो गया है, तो अमेरिका वाले लोगों के लिए इंडियंस काम कर रहे हैं तो रात में काम करना पड़ रहा है, तो मैं उन वो सभी को एक ये अलग मैसेज देना है। चाहता नहीं, if they're हूँ। आई हैव working, it's still excusable, but वैसे भी लेट उठते हैं। आई हैव बीन वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मुझे वो वाली लाइफ भी देखने की मिली जब मैं अमेरिकन के लिए काम कर रहा था और रात भर जाग रहा था। Okay. तो मैं दोनों लाइफ को एनालाइज करके कहूंगा, आई एम नॉट हियर जस्ट टू गिव एन ओपिनियन कि यू मस्ट गेट अप अर्ली, बट आई रियली वांट टू से दैट जब से पहले तो जब आप रात को काम कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आप पैसे में ग्रो कर रहे हैं, बट आप ओवरऑल आपकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी अगर रात को काम कर रहा है और इसलिए लेट उठ रहा है, तो definitely this might be your need of the time at this moment, lekin within 3 years 5 years you need to get into the normal routine again so that you can start waking up early. Ab why we need to wake up early? जब सुबह सुबह हम जब जल्दी उठते हैं तो पहला तो हमारा हेल्थ ऑटोमेटिकली बेटर होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब सुबह सुबह आप उठते हो तो सुबह सुबह आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है किसी तरह का, ना मोबाइल फोन का, ना ही आपका इंटरनेट का, ना फालतू की ईमेल्स का, या आपका उस समय मूड होगा कोई पिक्चर देखने का या रील्स देखने का या अननेसेसरी सोशल मीडिया के कमेंट्स देखने का। That is the best time for you to utilize for your growth. Second thing, early in the morning when you get up, what would you do? Many people exercise. I say the first thing which we all need to really work towards is our soul, because our soul is not visible, but I think that is what makes people very powerful. So the first is soul, second is mind, and then the third comes the body. Many people really do it wrong. They get up early and they go for morning walks, so they are working for the body. That is absolutely all right, that is the need. Health is wealth, 101% true, but very few people work on the mind. मैं हमेशा कहता हूँ कि once you wake up early in the morning, first 90 minutes has to be only and only for your mind and soul. Okay, you need to meditate, you need to do something which is very powerful, very empowering, which can stretch the limits of your mind. And when you get up early in the morning, you have created a different energy. By the time लोग 8 बजे उठ रहे हैं, आपने 3 घंटे का एक्स्ट्रा काम कर लिया और आपने 3 घंटे आपकी आत्मा को, आपके सोल को, नाउ आपकी बॉडी को भी आपने खाना दे दिया है. नाउ यू आर फुल्ली एनर्जाइज्ड टू परफॉर्म फॉर अनदर 15-16 आवर्स. I think that's the ultimate secret of productivity. मुझे पता है कि जब मैं भी यंग हुई हूँ अभी भी, लेकिन 30-35 के आसपास जब था तो मैं ऐसा सोचता था रात में काम कर लिया, जल्दी उठने की जरूरत क्या है, 11 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, how does it matter? I can work till 3 o'clock. I'm more productive and creative when I'm awake till late. But जब मैंने मैम 2000 I realized that सारे ऋषि मुनि, सारे साधु संत, सारे learned people, सारे हमारे ancient बुजुर्ग वगैरह सभी लोग कहते थे जल्दी उठो. I think they were not mad. For 5,000 years they have been telling us about waking up early. तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि अगर आज हम सब ने उन सब को इग्नोर करना सीख लिया है तो विनाश काले विपरीत बुद्धे. This is definitely Kaliyug का effect, and this is what is going to destroy us. Another thing is, देखिए, I'm sorry, ma'am, you wanted to say something? No, I was just thinking about it because I am a born Brahmin, and my dad used to wake up at 4. और मेरी मम्मी का ये कहना था कि 5 बजे के बाद तो उठना, मतलब आप उठ ही नहीं सकते. You have to get up at 5. Even on holidays, I used to be up at 5 a.m. But I got married into a business family where nobody would get up till 11. And I went through so much problems because of that, because from 5 to 11, I would wake up and I would sleep late with them and I would wake up early. So it was a big challenge for me, because by default, सुबह तो उठ ही जाती थी मैं, चाहे 3 बजे सोऊं, चाहे 4 बजे सोऊं. So ये adjustment करने में मुझे मुश्किल आई थी. I'm just sharing. And now, of course, I'm back to my 4 a.m. club with you. So I'm loving it. And वो कहते थे कि ब्रह्म वेला होती है उस time. That is the time to connect. I think all religions believe in that. Whether they're Muslims or गुरुद्वारे में जाओ, मुसलमान भी सुबह सुबह पूजा करते हैं, मंदिरों में भी होती है. तो कुछ ना कुछ universe की जो है ना vibrations, I think we are able to soak in, and that helps us, utilize our minds better, utilize our day better, which is what I feel about it. सारी डार्क फोर्सेस रात को एक्टिवेटेड है. रात को सारे पब्स, रात को सारे डिस्क्स, रात को सारे गलत धंधे, जैसे कसिनोज हो, जुए के अड्डे हो, कुछ भी हो, शराब खाने हो, सब रात को खुले रहेंगे. सुबह सुबह सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस आर ओपन. Alright, so it can also be a great signal for people who are, I think, common sense से जो सीख रहे हैं, सोच रहे हैं
कि why should you be awake when the dark forces are awake? You should be awake when the best forces, the divine forces are up. तो Right. सुबह उठना, Okay, I think BSR, मैं now we all know you get up at 4, सुबह सुबह उठ जाते हो. आपकी Right. दिनचर्या कैसी होती है? You have a very tough schedule, I know. So just can you share with the viewers like what goes behind scenes to become BSR, the global icon? What happens to him through the day, and how does he juggle through everything that he has to do? Can you just share? That would be really good for the youth to know. I think it's a very interesting life, I must say, and for many youths, it might be a very boring life also, because I get up early in the morning most of the times. Like out of 30 days, if I'm absolutely fit and fine, like today I have cold, so I got up late. But most of the times I'm up by 4:30, and when I wake up at 4:30, the first thing which I do is meditate or read books. That's what stretches the imagination. I was never waking up early in the morning, and I did one thing very good. भगवान ने मुझे एक blessing दी है कि मैं लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, तो उसके कारण लोग इकट्ठे हो जाते हैं सुबह सुबह 5 बजे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता. सो 5 से 6, 6:30 तक हम लोग अपने माइंड को ट्रेन करते हैं. माइंड को ट्रेन करने के बाद डेफिनेटली आपका ब्रेकफास्ट या आप मॉर्निंग वॉक वगैरह जा रहे हैं, या इफ यू आर विलिंग टू रीड मोर. आई पहले तो जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो आई हैड टू गो फॉर फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मीटिंग्स विद लॉट ऑफ कस्टमर्स एंड ऑल. तो उस समय तो 9 बजे आप ऑफिस में होते थे, 9 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक आपका ऑफिस या मीटिंग्स या ट्रेनिंग्स, ये बैक टू बैक चलता रहता था. बट थैंक्स टू दिस इंटरनेट ईरा, where until 12 o'clock it is my personal time. This personal time I plan, I think, I take the meetings of my team members, or I discuss, I brainstorm. और 12 बजे से लेकर रात को 10 या 11 बजे तक मेरा नॉन स्टॉप ट्रेनिंग्स का, मीटिंग्स का टाइम चलता रहता है. सो आई कम टू द ऑफिस यूजुअली आफ्टर लंच एट अराउंड 1 o'clock और मे बी 12:30, एंड देन इट्स बैक टू बैक मीटिंग्स. जैसे अभी ये मीटिंग चल रही है, इसके बाद आज कुछ और मीटिंग्स हैं. देन शाम को 8 से 9 मेरा सेशन है. उसके बाद जनरली वेबिनार होते हैं या फिर रिकॉर्डिंग्स होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं. Somewhere I heard you say कि मैंने 36 videos record करे एक दिन में, you know. I'm a YouTuber. मैं एक वीडियो I generally do like that. I'm mad for that. एक वीडियो जिस दिन रिकॉर्ड कर लूं तो मुझे लगता है बहुत हो गया, बढ़िया हो गया. One day I'm able to prepare, and one day I'm able to record. So this is how we generally. So टीम को भी कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरा रिकॉर्डिंग का स्पीड ज्यादा हो जाता है और एडिटिंग का स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि होता ही है, एडिटिंग में ज्यादा टाइम लगता है. Yes, it takes it's a little time consuming, right? Correct. So this is I so think wonderful. Reading books, yeah. meditating. What sort of books do you read generally? How do you select your books? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वैसे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में ही ज़्यादा मज़ा आता है, which can really give me the guidance about my life, about what is my soul doing and how I can. बिजनेस की बुक्स मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगती है, दो आई एम अ बिजनेस कोच, बट आई रीड देम ओनली व्हेन इट इज नीडेड, व्हेन आई नीड टू डू द रिसर्च. तो मेरा ये मानना है कि जब भी कोई काम होता है, फॉर एग्जांपल आई एम कोचिंग पीपल एंटरप्रेन्योर अबाउट सिस्टम्स, तो मुझे जबरदस्ती पढ़ना ही पड़ेगा. तो वो तो जो काम मेरे से मेरा कस्टमर करवा लेता है उसको मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा, मैंने पैसा लिया है. तो सो आई ऑलवेज प्रेफर रीडिंग अबाउट समथिंग व्हिच कैन एलिवेट माय लेवल. आई हैव अ स्ट्रांग इंक्वायरी दैट व्हाई एम आई बॉर्न. It's the very, very strong inquiry. I'm not really born just to make money. I'm not just born to deliver these talks every single day. I'm born to do something very different. That's what I feel, and that's what my constant search has been, कि कुछ तो स्पेशल है जिसके कारण मेरा जन्म हुआ है, और वो क्या है वो अभी तक मुझे मिला नहीं है. Hopefully I'm on the right path, and I'm searching for that. I'm meditating, I'm thinking, and let's see where we. 4 million people have watched you on Josh Talks. Millions of Indians are standing right behind you to lead them today. And you are saying कि अभी मैं सोच रहा हूँ. हम तो सोच के बैठे हैं कि जो BSR सोचेंगे वही ठीक है और हम भी वही सोचेंगे. So please do the thinking fast. So with so many followers behind you, you have already done great. And you're also doing great every day. And आजकल जो आपका एक project चल रहा है शाम को, and you have run this unprecedented project of Magic of Thinking Rich on the YouTube, where almost 50,000 people were coming in every day and learning from you, and you gave
so much value in that program, you know, like others, if we go to any workshops or things, people would charge lakhs and lakhs of rupees for those kind of things, and that information which you've given there, I've attended quite a few of them, so I know. And this is, you know, that generous attitude in you, or this urgency to make India again that sone ki chidiya which we've heard about, that you want each individual in India to really become wealthy and not just rich. You know, जो हम पास्ट हम पढ़ते हैं, मुझे लगता है आप उससे मोटिवेट होते हो कि ये दोबारा आना चाहिए हमारी कंट्री में। ऐसा मेरी सोच ठीक है क्या? Am I right on this? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अभी बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बहुत इनफैक्ट ऑल द यूथ स्पेशली, और यूथ भी क्या कहूँ, एक बार मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक वो हैप्पीनेस रिट्रीट चल रही थी, और एक यंग लड़का, 11 साल का लड़का, ही वाज आस्किंग वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। तो उसके बाद मेरी टीम का एक मेंबर है मनोज आया और बोलता है, सर हाउ इंटेलिजेंट दिस गाय वाज, हाउ मैच्योर ही वाज। सर वो अपनी एज के हिसाब से ज्यादा मैच्योर नहीं है। तो मैंने कहा, आपने बहुत सारे बूढ़े लोगों को देखा जो आपकी अपनी एज के हिसाब से बहुत ज्यादा इमेच्योर थे। सो एक्चुअली most of the people have really made their life very very small and box life, कि बस ये बॉक्स के ऊपर सोचना नहीं है। तो मेरा तो एक ही पर्पस है मैम, कि ये बॉक्स हट जाए और हम लोग सच में ये सोचने लगे, समझने लगे कि वी आर ऑल वेरी स्पेशल। जैसे मैंने कहा, मेरी खुद की क्वेस्ट है कि आई थिंक आई एम वेरी स्पेशल एंड आई ऑलवेज बिलीव इन दिस, लेकिन अभी तक मिल नहीं रहा है कि व्हाट इज द सो स्पेशल। क्योंकि मैं जहां से सोच रहा हूँ वहां पे मुझे अभी दिख रहा है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। ठीक है, थोड़े बहुत फॉलोवर्स हो गए, बट वो तो क्षण भंगुर है। मतलब हो सकता है मैंने 6 महीने काम करना बंद किया तो वो सारे फॉलोवर्स इधर उधर गायब हो जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। सो ये तो कंसिस्टेंट वर्क है जो कि रोज करना है। एंड हर एक आदमी को ये समझना पड़ेगा कि ही इज नॉट जस्ट हियर टू बिकम अ भोगी, बिकॉज भोग ब्रिंग्स रोग। ओके, जब हमने किसी भी चीज को खाना भी, हम चाहे टेस्टी खाना रोज अच्छा खाएं तो रोग ही आएगा। सो भोगी विल बिकम ऑलवेज रोगी। ये अंडरस्टैंडिंग हम सबको आ जाए जल्दी से जल्दी, तो आई थिंक वी ऑल विल बी रोग मुक्त। एंड सबसे बड़ा रोग तो मानसिक रोग होता है जो दिखता नहीं है। बॉडी का रोग तो फिर भी दिख जाता है, डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट कर लेते हैं, बट मानसिक रूप से रोगी भाई भाई से झगड़ रहा है, हस्बैंड वाइफ के तलाक ऐसे हो रहे हैं जैसे कि मतलब कुछ भी है, बेटे और माँ बेटों का रिश्ता अच्छा नहीं है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स, रिश्तों की प्रॉब्लम। तो ये मानसिक रोग हैं सारे, ये कैंसर से भी घातक रोग है, और इन रोगों को मिटाना होगा, इन लोगों के बारे में अवेयरनेस लाना होगा। एंड I think that's what my biggest work has to be, and that's why Magic of the Rich for 28 days. I know it's very difficult to do that 28 days workshop, क्योंकि एक तो कई बार बड़ा दुख भी होता है, लोगों को समझाना होता है कि भाई तुम ये वर्कशॉप अटेंड करो। अब ये उनकी नीड है, उनके लिए ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा लगा के कर रहे हैं, 28 दिन तक रोज कर रहे हैं, एंड स्टिल पीपल फील ओके, आपका कोई तो इसमें मकसद होगा, मकसद है, and that is to transform the world। and लोग कहते हैं अच्छा इसके बाद, लेकिन इतने लोग जुड़ जाते हैं, वो आपसे पैसा, उनसे आप पैसा कमाते हो, बिल्कुल। लेकिन अगर आप सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग। So one of your motivational stories is to become deaf and keep moving on. I remember आपने एक you were addressing women, अभी तो आप कह रहे हो ना आदमियों को सोचना चाहिए। So I want you to talk to the women viewers now and give them a message on what they should be doing, because you know, as women, even me, my life was like, we were like, you know, we are like frogs in our own wells most of the time. Of course, a lot of Indian women have gone out and done a lot of things, but majority of them वो family के बाहर मैं तो ये कहता हूँ, सबसे पहले किचन के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप सिर्फ कपड़े धोने के लिए पैदा नहीं हुए हो। यू आर ऑल्सो इक्वल ह्यूमन, एंड यू डिजर्व टू गेट अ लॉट एंड डू अ लॉट। स्पेशली देखिए, जो महिलाएं गांव में रह रही है और जिनके पास एजुकेशन नहीं पहुंच रही है, जिनके पास इस तरह के विचार नहीं पहुंच रहे हैं, या जो बाहर जाके काम नहीं कर सकती, कुछ अर्निंग के कैपेबल नहीं है, या उनको लगता है कि वो कैपेबल नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि वो कैपेबल नहीं है, बट वो सोच ही वैसी हो जाती है, उनको वातावरण ही नहीं मिल रहा है। उनके लिए तो फिर भी चलिए हम लोगों को ही कदम उठाना पड़ेगा। बट जो महिलाएं शहर में रह रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं, कुछ कर सकती हैं, कुछ पढ़ सकती हैं, उनको समझ में भी आता है कि देखिए अर्न 20,000 30,000,
I don't know why they also are thinking कि नहीं घर तो मुझे ही साफ करना पड़ेगा. I don't know why मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो खाना बनेगा ही नहीं. आई एम नॉट सेइंग कि खाना आप मत बनाओ, आप बनाना चाहते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है आपके घर परिवार के लिए बनाना, बनाइए. लेकिन मुझे ऐसा बात करके, हजारों महिलाओं से बात करके मुझे लगा कि दे डोंट एंजॉय दैट प्रोसेस, बट जस्ट दे डू इट बिकॉज देयर इज nobody else in the family It's a who is going to social take norm. that responsibility. Yeah. सो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से हर एक व्यक्ति को, हर एक महिला को ये समझना चाहिए कि जब हम ज्यादा कर सकते हैं तो हम क्यों करें. जब हम लीडर बन सकते हैं तो हम फॉलोवर क्यों बने. जब हम किसी को रोजगार दे सकते हैं तो हम खुद उस काम को क्यों करते रहे. मैं तो कहूँगा हर एक महिला को इस तरह से सक्षम बन जाना चाहिए कि वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमा सके और वो कम से कम ऐसी 10-10 महिलाओं को रोजगार दे सके और उनको भी फिर ये सिखा सके कि नाउ आई वाज डूइंग दिस टास्क, नाउ आई वांट यू टू बिकम बेटर. Yes. वो सोसाइटी बनाना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कई लोग कहते हैं कि लेकिन उसमें बच्चे इग्नोर हो जाएंगे. भाई आप बच्चों के बारे में तो सोच रहे हो, बट आप उन महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो जो आए हैं और जिंदगी I भर it has to be a combined responsibility. होता है क्या हमारे country में as where women can't work because it becomes their sole responsibility to take care of the child, and families are also not very supportive when they want to go out and work. तो वो चीज एक mindset हमें सभी का change करना है so that people are more open to it. And although we've been ruled successfully by a woman like Indira Gandhi, successfully kept us together for 18 years when she was here. And now we are so fortunate that we have a tribal woman leader appointed just yesterday. And so we have such amazing women in our country, and just little bit of support, like there is this he for she campaign, and that is what is required, I feel. So when the men are supporting us, सपोर्ट कोई नहीं करेगा, सपोर्ट छीनना पड़ता है. ये भी आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी. सपोर्ट के लिए खड़ा होना पड़ेगा. Yeah. That's also Nobody true, supports because us. God helps those who help themselves, no? तो वो भी एक बात आपकी बिल्कुल सही है कि unless we decide कि हमें करना है कुछ, तो नहीं कर सकते, है ना? Because nobody can really help you do anything. Because मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी वाइफ हैप्पीली किचन का काम कर रही है, मैं अपने दिन भर काम में लगा हुआ हूँ. मेरी तरफ से उसे फुल सपोर्ट है कि भाई ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, बट स्टिल शी इज मोर हैप्पीली डूइंग इट. अगर शी इज हैप्पी, आई एम ऑल राइट. इफ शी इज हैप्पीली कंप्लेन, अरे यार सारा काम करना पड़ रहा है, अरे इतना काम करना पड़ रहा है, क्या क्या करूं, तो मैं हमेशा कहता हूं व्हाई नॉट यू रियली डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. एंड आई डोंट वांट टू से दैट आप सिर्फ कमाएं. Somebody has a talent of art. Somebody has a talent. Let's go back to your childhood. Like you grew up in a village, Khatoli village, and then you were in Kishangarh, and from there you changed your mindset. You worked very hard. You learned English. You learned computer sciences. You went into the IT industry. Your journey is truly inspiring, and you've done so much in life and seen such various aspects of life. And sure, and you've had to deal with all different kind of people also, from village to Pune to Bombay to Delhi to UN to America. So you have had a vast exposure on how people react to you, how people are just looking at your clothes somewhere to judge who this person is, which is something very common, So tell me something like this whole journey. The little boy Bhupender, when he was growing up, what was his, mission, desire? I mean, you did talk about wanting to buy an ice cream and not having the money, and so you would save up those 3 rupees, walk it down, and eat that ice cream. वो मैंने सुना एक जगह, which is so amazing, like that determination. कि ice cream तो खानी है, भले ही चलना पड़ा कितना भी. तो that I could see right from your childhood. It's been there. कि जो चीज चाहिए वो तो करके छोड़ूंगा मैं, कैसे भी कर लूं. तो पर उस टाइम भी आपके मन में था कि मैंने एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे कुछ ऐसा करना है, कि ये बाद में हुआ? ये बाद में हुआ मैम. पहले तो ये होता था कि पहले तो मैं कहता हूँ कि मैं आज जब देखता हूँ उस जर्नी को, तो आई ऑलवेज फील दैट आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि आई नो द पेन ऑफ द विलेजर्स, आई नो द पेन ऑफ द सिटी पीपल, आई नो द पेन ऑफ अमेरिकन्स, एंड आई नो द पेन ऑफ all those corporate people who are working for India, for abroad, and all those kind of stuff. So भगवान ने मुझे बहुत कम समय में बहुत सारे experiences दे दिए. So I think this is a blessing.
शुरू में तो ऐसा नहीं था मैम कि मैं बहुत बड़ा कुछ बनना चाहता था, बस ये था कि पापा मम्मी को स्ट्रगल करते देखते थे, तो ऐसा ज़रूर था कि कुछ अच्छा कर लेंगे। और उस समय गाँव में यही बात होती थी, सरकारी नौकरी लग जाओ या फिर कुछ अच्छी जॉब में कर लो आप, तो जॉब अच्छी लग जाए ताकि मैं पैसा कमाने लग जाऊँ और घर परिवार को सपोर्ट कर सकूँ। दैट वाज़ द ओनली थॉट इनिशियली। लेकिन इट वाज़ माय फादर जो कि पहले तो किसान थे, गाँव में ट्रैक्टर वगैरह चलाते थे, खेती-वेती करते थे। दादाजी जल्दी एक्सपायर हो गए थे, उनको तो मैंने देखा नहीं। बट पापा वो सारे काम करते थे जो गाँव में एक नॉर्मल आदमी करता है। फिर उन्हें एक जॉब मिला जहाँ पे उनको ऑफ़न आपकी सिटी दिल्ली में रहने को मिलता था। And whenever he used to come after 3 months, 4 months, so he used to tell us the story about how Delhi is and कितने बड़े-बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, कैसे लोग होते हैं। और वो राजा महाराजाओं के साथ रहते थे, किशनगढ़ के राजा और उनके फ्रेंड्स और सारे लोग, विदेशों के लोग आते थे काफ़ी। तो ही वाज़ ऑलवेज़ लिविंग इन दिल्ली विद हाई क्लास पीपल। सो वो बताते रहते थे, बेटा ऐसे लोग होते हैं, ऐसी उनकी स्टाइल होती है, ऐसा गोल्फ कोर्स होता है, ऐसा गाड़ी होता है। तो वो मेरे फिर सपने बनते गए। बिफोर दैट आई वाज लाइक वेरी वीक। मैं कहूँगा मेरे अंदर बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव था मैं। मुझे बड़ा सोचना नहीं आता था, मुझे बोलना नहीं आता था, मैं बोलता ही नहीं था, बिल्कुल चुप रहता था। एंड इतना वीक था कि थोड़ी-सी कुछ गलत हो जाता था तो मैं घबरा जाता था और सुसाइडल थॉट्स मेरे अंदर बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे। और छोटे-छोटे बच्चों की जो ख्वाहिशें होती है वो तो होती है कि आइसक्रीम खानी है, तो बस घर वालों के पास तो इतना पैसा होता नहीं था, तो वेट या तो करते थे नाना के घर जाएँ तो नाना जी खिलाते थे आइसक्रीम, या फिर 50 पैसे की आइसक्रीम वो आती थी तो 2-3 महीने, कई बार 1 महीना, कभी 15 दिन वेट करते थे। मटके वाली कुल्फ़ी आती थी। कॉमिक्स पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर जो कॉलेज या स्कूल जाने के लिए किराया मिलता था टेम्पो का ₹2, वो बचा के मैं पैदल जा आता था और कॉमिक्स पढ़ लेता था। तो छोटे थे तो बहुत बदमाशी करना, मस्ती करना, ये सब तो था ही, लेकिन साथ ही साथ जैसे-जैसे ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लगा, क्योंकि मुझे लगता था मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। बट थैंक गॉड कि मेरे फादर ने मेरे को बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स दिए। आज भी मुझे याद है कि पैसा नहीं था घर में, लेकिन जब मुझे कुछ करवाने की बात आई कि कॉलेज के बाद, तो उन्होंने मुझे सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में वहाँ डाला, व्हिच वाज़ वेरी, वेरी बियॉन्ड, आई वुड से बियॉन्ड आवर रीच। लेकिन ही वाज़ ऑलवेज़ लाइक कि करना है तो बेस्ट से करना है बेटा। अंग्रेज़ी में सारी किताबें देख के ही मैं डर गया था। But thank God कि I could really read them. I became the best student of that institute. और फिर मुझे ये सेंस And you आने लगा talked. कि यार फादर ने इतने ज़्यादा पेन लिया है तो अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो उन्होंने इतने सपने देते गए, वो सपने बस वो कई बार ऐसे ही बात कर देते थे और वो कब मेरा सपना बन जाता था मुझे भी नहीं पता। जैसे उन्होंने एक दिन टीवी पे किसी न्यूज़ रीडर को देखा, शी वाज़ स्पीकिंग वेरी फ्लुएंट इंग्लिश एंड ही सेड, देखो बेटा कितना अच्छा इंग्लिश बोल रही है, काश मैं भी मेरे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा पाता। इट बिकेम माय ड्रीम। एंड फिर वो छोटे-छोटे ड्रीम की 5 स्टार्स में जाना है, अच्छी जगह पे रहना है, दुनिया घूमना है। एक बार मुझे याद है मैं पापा को कह रहा था कि मैं ना देखो बैंगलोर भी जा आया, मैं बॉम्बे भी जा आया। एंड ही वाज़ लाइक, तो क्या हुआ? मैं तो सुनना चाहता हूँ तू ऑस्ट्रेलिया जा आया, तू अमेरिका जा आया, तेरा 1 पाँव दुबई में, 1 पाँव तेरा ऑस्ट्रेलिया में। And it's एंड आई come वाज़ लाइक true. इट बिकेम माय ड्रीम And एंड इट बिकेम द ट्रूथ आल्सो, या। And you have been doing business coaching and motivational coach to so many huge corporate houses. I don't want to name them. I want my viewers to go and check it out. Who, what the person you are meeting, how deep is he? He's like an ocean of knowledge, an ocean of giving, an ocean of teaching. But tell me, Bhupinder, आपकी लाइफ में भी तो mentors अच्छे रहे हैं. I would like you to share something about your teachers and mentors who were instrumental in molding you and pushing you and giving you that push forward. Mentors meaning actually teachers also, but it could be somewhere you mentioned your sister, how she inspired you. Of course, your dad you've just talked about. But who are these people in your life who kind of pushed you and who are still pushing you onwards? सो मैम द फर्स्ट थिंग वाज लाइक व्हेन आई वाज स्टडिंग, तब मुझे सबसे पहले ये रियलाइज हुआ कि मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए। और माय फादर सेड, बेटा अंग्रेजी के लिए कोई भी कोचिंग करनी है वो कर लो। तो ये जो बढ़िया चीज़ थी, तो इसके कारण मैंने फर्स्ट पर्सनलाइज कोचिंग ज्वाइन की इंग्लिश की, और मैंने उसका एक्सपीरियंस देखा कि 3 महीने के अंदर मुझे वो लैंग्वेज जिससे मैं ज़िंदगी भर डर रहा था, आई थिंक 25 ईयर्स ऑफ माय लाइफ आई वाज स्कैर्ड ऑफ इट, एंड देन विद इन 3 मंथ्स आई गॉट द कॉन्फिडेंस दैट आई कैन स्पीक।
तो सबसे पहला मेरा मेंटोर मेरे जो रहे वो इंग्लिश के टीचर मेरे रहे, एक मैम ली थी और एक हेमंत अंबवानी सर थे. These two guys really transformed me in those 3 months. Both took my, I think, around 20 classes each. And यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है. और उसके बाद जब मैं पूना आया और मुझे किसी ने बताया पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग ग्रेट, तो मैं गया और मनीष गुप्ता सर मुझे मिले. उन्होंने 15 दिन का, आई थिंक 12 दिन का, डेढ़ महीने का 12 दिन का एक कोर्स था पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर. आई डिड दैट एक्सीडेंटली. आई वाज नॉट नोइंग कि पब्लिक स्पीकिंग मेरी जिंदगी में कैसे हेल्प करेगा, बट मुझे ये समझाया गया कि कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है. 17 घंटे आप दिन रात कम्युनिकेशन ही करते हो और आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कम्युनिकेशन आपको हर लेवल पे काम आएगा. तो आई थॉट यस, इट्स ट्रू, लॉजिकली इट इज ट्रू. मैंने वो कोर्स किया और मुझे फिर तो ऐसे लगा कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया. उसके बाद तो मुझे ये समझ आ गया कि लर्निंग इज द अल्टीमेट गेम चेंजर. और उसके बाद मुझे जो जो मेरे टीचर्स बताते गए, आगे से आगे हर टीचर ने कोई दूसरे टीचर का और बताया. फिर जब मैं वहाँ पे था तो पूनम मैम करके एक थी, उन्होंने मुझे बताया कि मितेश खत्री करके एक ट्रेनर है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं, मैं उनसे मिला. फिर किसी ने कहा नित्य शांति करके एक स्पिरिचुअल ट्रेनर है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस मेडिटेशन और ये सब सिखाते हैं, मस्ट अटेंड द प्रोग्राम. मैं उनके पास चला गया. एंड बेस्ट पार्ट, पहले टीचर को मुझे डेफिनेटली पैसा देना पड़ा. बाकी के जो अगले 2-3 टीचर्स मुझे जो मिले वो सारे ऐसे मिले जो गिविंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे. They used to say, you decide the fees, we are just here to teach you. वो धीरे धीरे मेरे अंदर भी आ गई. और फिर मैंने देखा कि अब मुझे प्रोफेशनली इससे पैसा कमाना है या इससे ग्रो करना है, तो फिर मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक NLP, देन लीडरशिप कोर्सेज एंड मेनी सर्टिफिकेशंस, जैसे कोचिंग सर्टिफिकेशंस एंड ऑल, वो सब करना शुरू कर दिया. तो वो सब करते करते डेफिनेटली पिछले आई वुड से 17 सालों में 15 से ज़्यादा अच्छे टीचर से मैंने सीखा. और हर टीचर ने मुझे किसी न किसी लेवल का एक एनर्जी दिया, एक अंडरस्टैंडिंग दिया. एंड और सबसे बढ़िया ऑडियंसेस जो मेरे रहे, उन्होंने सबसे ज़्यादा सिखाया. आई थिंक द मोस्ट आई हैव लर्नड इज बाय बीइंग ऑन द स्टेज. क्योंकि स्टेज पे आप रहते हो, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, द काइंड ऑफ इनोसेंस व्हिच वी ऑल हैव, एंड आई नो दैट आई हैव बीन आल्सो थ्रू दोस सिचुएशंस. तो आपके खुद के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते करते, ये ट्रेनिंग कंपनी रन करते करते, you learn a lot, books se, research se. Yeah. So LOA, you talked of law of attraction. Like these days, it's become very popular, especially after The Secret and everything. But believe me, this is something which is very Indian. You know, मैं जब छोटी सी थी तो मेरी grandmother मुझे शाम को बोलती थी, कुछ गलत नहीं बोलना, तथास्तु हो जाएगा. तो सब अच्छा बोलोगे तो वो तथास्तु होगा. So this is something I grew up with. You know, I didn't know it was law of attraction and all that. मुझे सिर्फ ये पता था कि अभी शाम को गलत नहीं बोल सकती क्योंकि गण है वो तथास्तु कह देंगे. तो I was quite till she was alive and I was with her. I was very particular कि शाम को कुछ negative नहीं बोलना, ही allowed नहीं है, लड़ना भी allowed नहीं है, you know, all that kind of thing. So there is a whole lifestyle change when you follow the lifestyle of law of attraction, right? There are so many activities, tools. Basically, I think it's the mindset. So have you got some good results by following any of that? Like you personally, you feel you've achieved any results because of your visualizations or manifestation techniques, or whatever you do, whatever tools you follow? I don't want to go into details of that. Is this that does it work? My main question is, does it work? आपने अभी थोड़ी देर पहले मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच की बात की थी. मैं पूरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में यही सिखाता हूँ कि आप अपनी एनर्जी को चेंज कर दें तो पूरे वातावरण की एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी. दिस यूनिवर्स इज अ मास बॉल ऑफ एनर्जी एंड वी ऑल आर कनेक्टेड, वी ऑल आर इक्वल. जो मेरी एनर्जी होगी वो मेरे पास आ जाएगी. तो इसीलिए अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये सिंपल सा लॉ है. देखिए, आप मुझसे जो क्वेश्चन पूछेंगे उसी का मैं आंसर दूंगा, राइट? जो मैं बोलूंगा उसके बेस पे आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. तो ये एक कांस्टेंट एक कोरिलेशन चल रहा है एक्शन एंड रिएक्शन का. यही यूनिवर्स के साथ हमारा चल रहा है. जो एक्शन है, जो थॉट्स हम डाल रहे हैं, वही वहां से रिस्पॉन्ड आ रहा है. सो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि भाई जो हम हैं वही तो हमें दुनिया देगी. हमने एक काबिलियत डेवलप कर ली है इंजीनियरिंग की, तो हमें इंजीनियरिंग का पगार मिलेगा, हमें या वो वैसा ही जॉब मिलेगा. हमने मेडिकल साइंस में कुछ कर लिया तो मेडिकल साइंस से रिलेटेड कुछ मिलेगा. सो एवरी सिंगल डे व्हाट वी आर प्रोजेक्टिंग टू द यूनिवर्स, द सेम थिंग इज कमिंग टू अस. सो आई ऑलवेज बिलीव पहला चीज मिरेकल कन्वर्सेशंस. जो चाहिए वो बोलते जाओ और ऐसे ही बोलते जाओ जैसे कि
हर चीज, जैसे हो कि गया। श्रुति मैम और मैं मार्स में जा रहे हैं और रॉकेट में जा रहे हैं आराम से और बहुत ही मस्ती कर रहे हैं। मार्स में जाके Oh ऐसे आ wow, रहे हैं जैसे कि दिल्ली जाके आ रहे हैं, सो ब्यूटीफुल। अब ये बोलने that में sounds कहाँ great. एंड शायद किसी ने बोला, इसलिए आज ये कहीं ना कहीं देयर आर पीपल हु हैव गॉन टू मार्स एंड दे हैव कम Gone to बैक the past, प्रॉब्ली, yeah. राइट? एटलीस्ट मून Tathastu. आए हैं। Maybe travel to Mars together. Today So, we so you really, have you know, also, you are also a very and popular author. Your books are being read. You've written 2 books, as far as I know. Is there a third one or two? Two I books. third Master one Your is Thoughts and Master Your Mind is one, which of course is again yes, what we have just talked about. And then The Art of Public Speaking, right? correct. 15 Days to Public Speaking. So just tell us a little bit about these books and how you think our viewers should pick them up and what value will they get out of them. मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ तो मेरी फेवरेट बुक है मैम, क्योंकि ये अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। वही है, जो बोलोगे वो मिलेगा, जो विचार आप यूनिवर्स को डालोगे, इंटेंशन डालोगे, जो आप विजुअलाइज करोगे, जो पिक्चर आप बार बार देखोगे, जैसे लोगों के साथ आप रहोगे, जैसे संगत के साथ, दैट विल हैपन। तो अगर आपको अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली चेंज करना है तो कॉन्शियसली यू हैव टू मास्टर योर थॉट्स, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की अगर आप पानी को भी पॉजिटिव बोलते हैं तो पानी भी आपको हीलिंग का काम करता है। आप खाने को पॉजिटिव बोलते हो तो खाना आपके लिए हीलिंग का काम करता है। सो इट्स लाइक मास्टर योर थॉट्स, बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। ये इसी बुक का हिंदी ट्रांसलेशन कॉपी है। Nice. एंड 15 days to master the greatest art of all time, which is public speaking, greatest skill of all time। क्योंकि जब बात करते हैं स्किल की तो बहुत सारी स्किल्स हैं आज की डेट में, बट द अल्टीमेट स्किल विच पीपल हैव बीन यूजिंग टू इन्फ्लुएंस द सोसाइटी एंड ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी इज कम्युनिकेशन। आज हम मोदी जी की बात करें या पास्ट में हम हिटलर की बात करें या पास्ट में और किसी बहुत बड़े प्रतापी राजा की बात करें, तो दे ऑल हैव यूज्ड कम्युनिकेशन एज अ टूल टू इंस्पायर पीपल टू गिव लाइफ फॉर देम और टू मेक समथिंग बेटर फॉर देम। Okay, so communication is the ultimate tool, and जब आप leader बनते हो तो you have to communicate not with yourself, you have to communicate with the masses। इसीलिए public speaking, इसीलिए I always tell you that this is the greatest skill of all time, and आराम से इसको 15-20 दिनों में 25 दिनों में तो बहुत अच्छे से मास्टर किया जा सकता है, but then people don't really realize it and they think नहीं ये तो कोई अलग से God gift है जो कुछ लोगों को मिला है, which is not true at all। So I think both the books are very important for all the people, and that's what I have learned in my life. These are my initial learnings when I got into this field, and I highly recommend people to read these books and pick up Absolutely. these. I think it is so important to get over the fear of public speaking. Although I've been into communication and I have a good educational background, still I find it difficult to go on stage and address when there are maybe 1,000 people or 2,000 people. 2 minute, that nervousness is there, that fear is there. I find it very difficult to talk. So I have taken tips from you, and I'm going to try to be your best student soon. बिकॉज आई थिंक गुरु दक्षिणा तो इसी में होती है ना, जो अच्छा करके दिखा दो गुरु को। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयरिंग सम गुड feedback for you. And now I think I want you finally to just make a gist of, since you are into motivation, you are into inspiration, and my show is all about inspiring youth and women, कुछ अच्छे 3 या 5 टेक बैक्स बता दो जो हमारे व्यूअर्स को याद रहे कि बीएसआर ने ये बोला था तो ये तो मुझे करना ही है। तो क्या क्या हमें करना चाहिए to improve our lives? सबसे पहला तो खुद पे दया करना छोड़ दो। हम लोग खुद को बहुत पैम्पर करते हैं, खुद पे बहुत दया करते हैं। अरे अभी तो थोड़ा और खा लेते हैं, अभी तो थोड़ा और सो लेते हैं, अभी तो थोड़ा मूवी देख लेते हैं, अभी तो उसके बाद करेंगे। खुद पे दया करना छोड़ दो और उन चीज़ों पे लग जाओ जो आपको ग्रोथ देंगी। हम लोग ग्रोथ से रिलेटेड सभी चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं और जो डी ग्रोथ देने वाली चीज़ें हैं उनको तुरंत करने लग जाते हैं। आई थिंक दैट्स वाई, बिकॉज वी ऑल फील दैट ओके आराम से करेंगे। सेकेंड इज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जब जो कोई चीज़ करनी ही है तो अभी कर लेते हैं, बाद में एंजॉय कर लेंगे। सो एंजॉयमेंट को हम पोस्टपोन करें। हम लोग कहते हैं कि हैप्पीनेस इज अ प्रायोरिटी, बट मुझे लगता है अल्टीमेट हैप्पीनेस आदमी को तब मिलती है जब वो कुछ अचीव करता है, और वो फिर जो अचीवमेंट की खुशी होती है वो जिंदगी भर होती है। जैसे मैं यूनाइटेड नेशंस गया, वो अचीवमेंट था तो उसको मैं जिंदगी भर सेलिब्रेट कर सकता हूँ। सो आई थिंक वी नीड create lifelong happiness rather than creating momentary happiness कि भाई इस मोमेंट में दोस्तों के साथ मिल ली और हैप्पीनेस आ गया, लेकिन उस 1 घंटे के बाद फिर से अकेले हो गए आप।
So rather that 1 hour you need to put in something very high class, which is high quality. Second thing is, जो करो कमाल का करो. अगर हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि it doesn't लोगों तक ये पहुंचेगा. अगर एक भी आदमी ने इसे सुना तो वो एक भी आदमी उससे पूरी तरह से बेनिफिट हो जाए. दैट इज व्हाट आई फील. कई बार ऐसा होता था शुरू में, जब मैं ट्रेनिंग शुरू करता था तो लोग कम होते थे, कभी 2 लोग, कभी 4 लोग, तो मैं डीमोटिवेटेड हो जाता था. मैं अपने टीचर के पास जाता था तो वो ये कहते थे, तुझे इससे क्या मतलब है कि 1 आदमी है या 1000 आदमी है या 5000 आदमी है. तुझे तो ऐसा सोचना है कि वो एक आदमी सारी दुनिया को तेरे बारे में बता सकता है. Who knows कि वो एक आदमी राष्ट्रपति बन जाए. Who knows कि that one person who is sitting in front of you can become prime minister tomorrow, and then based on your performance he will decide. वहां से जब वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने तो वहां से वो तेरे बारे में बात करेगा या नहीं करेगा. So your job is that one person who is sitting in front of you, या that one job which you are doing, that one person is very important. So I think जो करो कमाल का करो, क्योंकि कोई भी आपको देख रहा है तो वो इंसान आपको देख के आपके बारे में जजमेंट बना रहा है. और Very एक ही nice. जिंदगी है. I think we don't have too many lives. If it is one life, it is one responsibility. And जो भी हम अच्छा करेंगे उसका फायदा हमें और हमारे परिवार वालों को ही होगा. तो हम अच्छा करने से क्यों सोच रहे हैं ज्यादा? और अच्छा करना बहुत सिंपल है, दिमाग लगाना ही नहीं है. जो अच्छा लोगों ने किया वो अच्छा करते जाओ. दिमाग क्यों लगाना है? आप सोच रहे हो मैं क्या करूं? सिंपल सी है. मुझे तो लगता है 10 से ज्यादा एक्टिविटीज ही नहीं है. आप बुक पढ़ लो, अच्छे वीडियो देख लो, मेडिटेशन कर लो, आप थोड़ा सा एक्शन ले लो, अपने टाइम को मैनेज कर लो, आप कम्युनिकेशन अच्छा कर लो. ऐसी छोटी 10 बातें हैं जो कि आपको लीडर बना सकती है. बट आदमी दिन रात सोचता रहता है मैं क्या करूं. ये क्या करूं सोचने में जिंदगी निकालने से बेटर है करना शुरू करते हैं. एंड करना. थर्ड थिंग इज, पीपल आर thinking I am too late now. I think you are never too late. Just start now, start again. We are humans, so sometimes we will be late. It's okay. So let's start again wherever we are. कुछ चीज छूट गई है तो वापस से let's start again. These are the Thank things you, which I because would that means a lot to me. I'm starting late. But I'm at you are it. not you're starting at the And right time. वो बात आप जो कह रहे हो ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब. So that's for all our viewers. इतनी सारी बातें व्यास जी ने बता दी हैं. And another very interesting thing I have seen in one of your videos, which you say, because I also coach and I talk about goals to youth. So you have made from smart goals to smarter goals, which I really love. So your goals, write down your goals. It's very important for everybody who's listening. Write down your goals. I've also now started writing my goals, which I never used to. I used to think my mind is good enough. Yeah, एक notepad है, वहाँ लिख लिया है, बस इतना ही काफी है. Paper पे नहीं लिखना. But write down your goals, because Sir says that. Be specific, make them measurable, make them actionable, make them relatable, make them time bound. And the most important, what he says is, make them enjoyable and exciting, and make sure they're rewarding. So, which is what I really loved, So, smarter goals is what is his idea. I'm just sharing it with you because I really liked it. And so, on that note, I think we can leave the show. And I have learned a lot today from you. So, I will take back all these things you told me, and I will try to, work on it. And I hope a lot of our viewers will do the same. And thank you so much for giving me your time, because I know your time is the most precious thing. And आपने वो मुझे दे दिया, इसलिए तहे दिल से आपका धन्यवाद. Thank you so much. Thank you for this wonderful show, and thank you so much to the entire 10 News team. It's really special. Thanks a lot. Thank you. And to my viewers, just please stay tuned in, because I'm going to be getting more very interesting guests for you. And we will learn from them, and we will adapt all the good things that they have to tell us. And we will change our story. Badal do apni kahani aaj. That's my book. Yes, sir. I've written a book called Change Your Story today, and my Hindi version is coming out. Badal do apni kahani aaj. It will be on Amazon soon. So nice. So, all the best for that. Do have a look at that also. Thank you so much. Thank you. Thank you. Take care. Bye-bye.